मेरी आवाज जा रही है? यस राकेश जी आ रही है Hello. आवाज। आ रही है Okay. आपकी आवाज। First of all, I have to tell you that about the sociomatic methods and sociomatic choice. The term sociomatic relates to its Latin word socius meaning companion and mentrum meaning measure. सोशियोमेटिक का जो वर्ड्स है वो दो लैटिन वर्ड्स से रिलेटेड है। एक सोशियस जिसका मीनिंग होता है कंपेनियन मीन्स साथ, और मेंटरम मीन्स मेजरिंग यानी मापन। Sociometric, which is a quantitative method for measuring social relationship. Meaning of sociometric: the credit of designing and developing sociometric techniques goes to J.L. Marino and Helen Jennings. Sociometric techniques को डिजाइन करना और उसे डेवलप करने का क्रेडिट जेल मोरेनो एंड हेलेन जेनिंग्स को जाता है। The effort in this regard came to light in 1960. It is a well-used technique which is designed to present the structure of social relations among the member of a group graphically in a simple way. मतलब हम इस ये जो टर्म्स आया सोशियोमेटिक वो 1960 में आया, और इसका ये बहुत ही वेल टेक्निक है जिसका डिजाइन किया जाता है। हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसको ग्राफिकली एक सिंपल वे में हम इसे प्रेजेंट करते हैं जो सोशल रिलेशनशिप्स को प्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू हेलेन जेनिंग्स, sociomatic may be described as means of presenting simply and graphically the entire structure of relations existing at a given time among members of a given group. The major trend of communication of the patterns of attraction or rejection in its full scope are made readily comprehensive at a glance. At a glance हम अकॉर्डिंग टू हेलेन जेनिंग्स हम सोशियोमेटिक को मेथड्स के अंदर हम सिंपली ग्राफिकली तरीके से जो सोशल रिलेशंस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं मेंबर के, ग्रुप मेंबर्स के जो चॉइसेस हैं उसके आधार पर उनके कम्युनिकेशंस को भी ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। Socius and mentrum. Socius is the first word related to Latin meanings, which means partner or friend, and then second mentrum related to Latin word which means measurement. So it means the effect of social life. आवाज आनी बंद हो गई है। भैया आवाज नहीं आ रही है। राकेश आवाज नहीं आ रही है। Good afternoon, ma'am, and my dear colleagues. Myself, Pooja Patel. Today, I am here to present my topic, research design. Basically, I am talk about single subject design, randomized group design, and mass group design. First of all, I talk about what is design. An experimental research design is like a blueprint of the procedure involved in answering a research question. The research design refers to the researcher overall plan for answering the research question or testing the research hypothesis. रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च करने के लिए बनाया गया एक ऐसा प्लान और स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा रिसर्च प्रॉब्लम्स का आंसर मिलता है, और रिसर्च डिज़ाइन रिसर्चर्स को रिसर्च के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी मदद करता है। पर्पजेस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इसके कई पर्पज होते हैं। टू प्रोवाइड करेक्ट आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन, टू कंट्रोल वेरिएंस, टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस, और जो कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस एलिमिनेशन के थ्रू होता है, कॉन्स्टेंसी, बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग और रैंडमाइजेशन के थ्रू होता है, और मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, there are two types of research design: non-experimental research design and experimental research design. Non-experimental design एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें कि इस तरह के डिज़ाइन में प्रयोगों का न तो रैंडमली सिलेक्शन ही हो पाता है और ना ही उनका डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में रैंडमली असाइन ही हो पाता है। एंड ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, कोरिलेशनल डिज़ाइन, कॉन्स्ट्रक्ट डिज़ाइन, केस स्टडी डिज़ाइन एंड सर्वे रिसर्च डिज़ाइन।
experimental research design. Experimental research design are concerned with examination of the effect of independence variable on the dependent variable, where independence variable is manipulated through treatment or intervention, and the effect of these intervention is observed on the dependent variable. ये एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जिसमें आईवी में मैनिपुलेशन करने के साथ साथ सब्जेक्ट को रैंडमली अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में असाइन भी किया जाता है. देयर आर or types of experimental design. There are two types of experimental design: between group design and within group design. Between group design are three types: randomized group design, mass group design, factorial design. And randomized group design are two types: two randomized group design and more than two randomized group design. Within group design, basically a single group design, there are three types: withdrawal design, alternative, multiple baseline. Single subject design. Single subject design or single case design are research design that use the result from a single participant or subject to establish the existence of the cause and effect relationships rather than comparing groups of subjects. This design relies on the comparison of the treatment effect on a single subject group design. जैसा कि नाम से ही यह पता चल रहा है कि इस डिज़ाइन में सब्जेक्ट का एक ग्रुप या एक सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं इस और दिस डिज़ाइन द सम पर्सन टेस्ट ऑल द कंडीशंस. इसमें थोड़े थोड़े समय के गैप पर ट्रीटमेंट दिया जाता है और ट्रीटमेंट का उसके पे पड़ने वाले इफेक्ट को मेजर किया जाता है. इसका यूज़ ज़्यादातर अप्लाइड फील्ड और साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर में किया जाता है. फेजेस विद इन सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन. इसके 3 फेज होते हैं: बेसलाइन, इंटरवेंशन एंड रिवर्सल. बेसलाइन में बेसलाइंस का यहाँ पे मतलब है कि जब हम किसी सब्जेक्ट या ग्रुप का डेटा बिना किसी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन अप्लाई किए बिना ही कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बेसलाइन डिज़ाइन. फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे कि अगर एक स्टूडेंट है उसका स्कूल में वायलेंट बिहेवियर है, तो हम जब उस वायलेंट बिहेवियर को मेजर करते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, मतलब बिना किसी ट्रीटमेंट अप्लाई किए बिना ही उसका जैसा है एक्चुअल में उसका बिहेवियर वैसे मेजर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेसलाइन. और इंटरवेंशन, इसमें हम ग्रुप या सब्जेक्ट पर इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद डेटा कलेक्ट करते हैं. और रिवर्सल का मतलब होता है कि कोई ट्रीटमेंट या थेरेपी देने के बाद सब्जेक्ट के बिहेवियर में आए चेंजेस को मेजर कर लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब लगातार देते रहते हैं ट्रीटमेंट और फिर उसके बिहेवियर को मेजर करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं और फिर कुछ दिन के बाद उस सब्जेक्ट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. टाइप्स ऑफ सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन. withdrawal design. As the name implies, the experimental treatment that is introduced following a baseline period is then withdrawal. The treatment can be systematically presented. The withdrawal is several ways. इसमें ट्रीटमेंट पहले प्रेजेंट की जाती है सिस्टमेटिकली कुछ दिनों तक, फिर उसे रोक दिया जाता है. इसमें ये देखा जाता है कि ट्रीटमेंट देने से सब्जेक्ट के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं तथा ट्रीटमेंट बंद कर देने से उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, और इसको कई तरीके से हम माप सकते हैं. जैसे AB डिज़ाइन पैराडिगम, A फॉर बेसलाइन एंड B फॉर ट्रीटमेंट. A का मतलब होता है, एक उदाहरण के थ्रू इसको हम समझेंगे. इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि पहले एक व्यक्ति के कोई व्यक्ति है वो ड्रिंकिंग बिहेवियर है उसके में, तो ड्रिंकिंग बिहेवियर जो को ऑब्जर्व कर लेते हैं पहले. फिर ये हो गया बेसलाइन, उसका क्या वो कितनी बार दिन में पीता है ये उसका बेसलाइन हो गया. हमने मेजर किया कि अच्छा वो 10 बार पी रहा है दिन में. फिर उसके बाद उसको शॉक दिए, कोई थेरेपी यूज किए या शॉक दिए, ये हो गया ट्रीटमेंट. इसका मतलब हुआ AB डिजाइन, बेसलाइन देन ट्रीटमेंट. पहले बेसलाइन मेजर किया फिर हमने ट्रीटमेंट दिया. ABA डिजाइन, A फॉर बेसलाइन और B फॉर ट्रीटमेंट एंड देन बेसलाइन. A पहले सब्जेक्ट मतलब पहले सब्जेक्ट का एक्चुअल बिहेवियर पता किया कि वो ड्रिंकिंग से ये एक वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कितना वो दिन में पी रहा है, तो वो उसका बेसलाइन हो गया. फिर हमने ट्रीटमेंट दिया, देन बिहेवियर चेक किया, तो ये उसका ट्रीटमेंट हो गया. फिर कुछ दिन बाद उसको ट्रीटमेंट देते रहे, फिर उसके बाद ब्रेक कर दिए, फिर ट्रीटमेंट बंद कर दिए. फिर कुछ दिन बाद उसका जब हम चेक करते हैं बिहेवियर, तो वो उसका एक नया बेसलाइन हो जाता है.
अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट डिज़ाइन। इसका मतलब होता है कि एक साथ दो अलग अलग ट्रीटमेंट देना। शौक के साथ अगर हम कोई ऐसी दवा या कुछ ऐसा शराबें मिला देते हैं ताकि उसे पीते ही उसे वोमिटिंग आए या दुर्गंध आए, एक प्रकार का एराइव्ड कंडीशनिंग होता है। तो ये एक साथ दो ट्रीटमेंट इसमें यूज करते हैं, तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है एक के बाद दूसरा। और मल्टीपल बेसलाइन डिज़ाइन, मल्टीपल टाइम हम बेसलाइन मेज़र करते हैं। हर एक एंगल पे हम उसका ट्रीटमेंट करने के पहले हर एक एंगल पे बेसलाइन मेज़र करते हैं उसके बिहेवियर का। Randomized group design. A randomized group design is one in which subjects are randomly assigned to the different group meant for the different condition or value of the independence variable. इस डिज़ाइन में पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन किया जाता है और इसमें आईवी के जितने लेवल्स होंगे उतने ग्रुप रैंडमली असाइन किया जाता है। Types of randomized group design. There are two types of randomized group design: two randomized group design and multiple randomized group design. Two randomized group design. In this design, subjects are randomly assigned to two groups. Only experimenter first define independence variable and then dependent variable. टू रेंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन में जब सब्जेक्ट को दो ग्रुप में रेंडमली असाइन किया जाता है। इसमें एक को कंट्रोल ग्रुप तथा दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिया गया है कि पॉपुलेशन से हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, उसको रेंडमली सेलेक्ट किया, फिर उसको टू ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, और ग्रुप बी जिसको कोई नो ट्रीटमेंट प्रोवाइड, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। मोर देन टू randomized group design. Such as design, there are three or more condition or values of the independence variable according three or more groups of subject participant in the experiment. इसमें दो से अधिक ग्रुप्स में सब्जेक्ट को बांटते हैं। इसमें आईवी के दो से अधिक लेवल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ टीचिंग का अगर हम रेट ऑफ लर्निंग पर इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आईवी हमारा टीचिंग मेथड हो गया, और इसमें टीचिंग मेथड हमारा डिस्कशन मेथड हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड हो सकता है, लेक्चर मेथड और ऑनलाइन मेथड भी हो सकता है, और डीवी हमारा रेट ऑफ लर्निंग है। Mass group design. A mass group design is an experimental design where pair of participants are matched in the term of key variable such as age or socio-economic status. One member of each pair is then placed into the experimental group and other member into the control group. इसमें हम जो भी सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसको किसी एक वेरिएबल पर या मीन्स पर मैच कर लेते हैं, ताकि जिस फैक्टर के इफेक्ट का अगर हमको मेजर करना चाहते हैं तो उसी फैक्टर का मेजर हो, किसी दूसरे फैक्टर का मेजर ना हो पाए। फॉर एग्जांपल हम मेथड ऑफ टीचिंग का अगर रेट ऑफ लर्निंग पर इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हमने दो ग्रुप ले लिया है, 10th क्लास का दो ग्रुप लिया है, क्लास 10th ए, क्लास 10th बी। इसमें हमने उनमें से एक को लेक्चर मेथड दे दिया और दूसरे को ग्रुप ऑफ डिस्कशन मेथड दिया है। बट यहाँ पर एक फैक्टर यह भी है कि हो सकता है कि जो इंटेलिजेंस बच्चे हैं वो यानी हाई इंटेलेक्चुअल के बच्चे हैं वो दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो लो के हैं वो कम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है रेट ऑफ लर्निंग पर उस पर टीचिंग मेथड का इफेक्ट पड़ा है या किसी और फैक्टर का। तो यदि यहाँ पर हमें केवल मेथड ऑफ टीचिंग का ही इफेक्ट देखना है तो यहाँ पर मैथ ग्रुप्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर कोई और फैक्टर का इफेक्ट न पड़े। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों ग्रुप के बच्चों पर इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करेंगे। आई आर विजिबल? हेलो? हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है। फिर जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से हाई इंटेलिजेंस दो ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, हाई इंटेलिजेंस ग्रुप एंड लो इंटेलिजेंस ग्रुप्स में बांट देते हैं और दोनों पर लेक्चर और डिस्कशन मेथड का यूज करते हैं। सो दो ग्रुप बनाएंगे, उनके पहले एक वैल्यू पर मैच करेंगे जैसे ये इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस के लिए पर, और इसके बाद उनके ग्रुप बनाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड मैच ग्रुप डिजाइन।
ये कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर 2 मैथ ग्रुप डिज़ाइन भी हो सकता है, मोर देन 2 मैथ ग्रुप डिज़ाइन या सिंगल मैथ ग्रुप डिज़ाइन भी हो सकता है। जैसे यदि हमने सिर्फ इंटेलिजेंस लिया है तो सिंगल हो जाएगा, और अगर इंटेलिजेंस के साथ एज ले लिया है तो कि केवल 16 साल या 17 साल के ही बच्चे लेंगे तो एज टू मतलब एज टू मैथ ग्रुप डिज़ाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा, इंटेलिजेंस और एज। थैंक यू। बहुत अच्छा पूजा, बहुत ही अच्छे से तुमने बताया विद एग्जांपल्स। थैंक यू मैम। काफी अच्छा तुमने एक्सप्लेन भी किया है, और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So thank you, Pooja. Thank you for explaining the concept for all Thank you, of us. ma'am. Shabash. Very good. I can see that Rakesh has already joined. So Rakesh, are you in a position to present your thing with us, or you need some more time? Rakesh? मैम अभी लेफ्ट हो गए मैम। अरे रे, जो जितना ज्यादा इंतजियास्टिक होता है। अच्छा, तो अब और कौन प्रेजेंट करेगा? अब और कौन प्रेजेंट करेगा? क्या कोई तैयार होके आया है आज? अरे हाना तो बोलो। आज 2 लोगों का था मैम। आज इन्हीं दोनों लोगों का था यस मैम। और डिजास्टर हो गया, यस मैम। है ना? यस अच्छा मैम। चलो, कोई बात नहीं। आप में से कोई राकेश को फोन कर लो। देखो किरण मैम जुड़ गई है क्या? लेफ्ट हो गई है मैम शायद। अच्छा, जो जितने भी रिसर्च डिजाइन हैं वो देखने में सुनने में थोड़े वो लगते हैं कि यार ये कैसे होगा, लेकिन अगर आप थोड़े भी मेथोडोलॉजिकली अपने इसको प्लान करें, अपने रिसर्च को प्लान करें, तो आप अपने सैंपल के साथ अपने रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आप अपने सिनॉप्सिस में भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पेशली जो कल एक लेक्चर हुआ था उसमें आपने सुना होगा कि जो सिनॉप्सिस है वो पूरे रिसर्च का एक वो होता है, एक रोड मैप होता है, एक प्लान होता है, जिसमें आप कोई भी ऐसा काम आगे नहीं करते हैं जो कि आप सिनॉप्सिस में मेंशन नहीं करते हैं। इस बात को आप एकदम क्लियर रखिएगा कि जो आप सिनॉप्सिस आज बना लेते हैं वो उसी को आपको आगे लेके बढ़ना होता है। ये नहीं होगा कि अच्छा रिसर्च करते करते बीच में आपको लगा कि हमने तो वहां पे ऐसे लिख दिया था तो हम इसे किसी दूसरी तरह से लिख सकते हैं। आप अपना सैंपल बदल दीजिए, आप अपना डिजाइन बदल दीजिए, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं होते हैं। और थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल्स चेंज नहीं किए जा सकते, स्केल चेंज नहीं किए जा सकते, सैंपल नहीं बदला जा सकता। और जो बच्चे ये सब करते हैं और सोचते हैं कि हम कर लेंगे, वो आगे जाके फंसेंगे। इसलिए पुराने बैच के बच्चों के एग्जाम्पल्स मत लीजिएगा, क्योंकि जो चीजें पहले हो गई, अब आगे वो चीजें नहीं होंगी। स्पेशली एक चीज और कि जब आप सिनॉप्सिस बना करके अप्रूव करवा लेते हैं, आपकी आरडीसी हो जाती है, तो उसके साल भर के अंदर तक अगर आप अपने सिनॉप्सिस में कुछ चेंज करना चाहते हैं, साल भर के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन के साल भर के अंदर, तो ही आप उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिस्टमैटिकली प्लान करके अपने किए जाने वाले काम को समझा नहीं और बस किसी की सलाह लेकर के काम करना शुरू कर दिया, और बाद में काम करने के दौरान आपको लगा कि ये चीज वैसे पॉसिबल नहीं है या सैंपल हमें नहीं मिल रहा है, या इसका डिजाइन हमने कुछ और रिपोर्ट कर दिया, डिजाइन कुछ और करना है, तो वो आगे जाकर के चेंज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सिनॉप्सिस बनाते समय सबसे ज्यादा जो ध्यान देना होता है
तो आपको मेथोडोलॉजी के पार्ट पर ही ध्यान देना है, ठीक है? हम लोग मैम किरण हमारे बाला मैम साथ टूट गई है मैम। हाँ आई नो। तो अब हमारे साथ किरण बाला मैम जुड़ चुकी हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और देर के लिए थोड़ा सॉरी, एक्चुअली हमारी तरफ से ही ये मिसकम्युनिकेशन हो गया था, ये मेरे एंड से ही था और सॉरी, लेकिन फिर हम लोग you need not be sorry because we were not just waiting, we were having our presentations on. तो आज आपके लेक्चर के साथ ही हमारे दो स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशंस थी, तो हम लोगों ने बस उसे आगे पीछे कर लिया एंड वी हैव यूटिलाइज्ड द होल टाइम। हमारे साथ हमारी स्टूडेंट पूजा पटेल ने रिसर्च डिजाइन्स कम्युनिकेट किए हैं। एक दूसरे स्टूडेंट के जो प्रेजेंटेशन है वो बीच में रुक गया, ट्रांजेंडेंट प्रॉब्लम का सोशियोमेट्रिक एनालिसिस पे बात करते हैं। तो आज हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, वी आर वेरी मच privileged to have Dr. Kiran Bala ma'am with us, who is an associate professor and now she's a professor, and she was the ex-head of Department of Psychology, Harishchandra PG College, and I don't think that anyone of any of the student or teacher is not acquainted with her, because she is very known and very popular personality, being a very intelligent, very diligent, very soft spoken and very helpful also. मैम मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ। मेरी PhD तो विद्यापीठ में आकर के हुई। मेरा MA जो है 2000 में हुआ। तो मैं उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट हूँ। मेरी किसी भी फ्रेंड्स जो हिंदी मीडियम से कर रही थी, वो सब मैम आपकी किताब पढ़ती थी। तो आप you're very senior and adorable to me also, because even मैंने भी आपकी बुक्स पढ़ी है। पर्सनालिटी पर आपकी जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, और PG और रिसर्च स्टूडेंट के लिए वो एक तरह से गीता का ही काम करती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि आप आज हमारे साथ जुड़ी हैं। इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हमारे रिसर्च अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। और इंटरेस्ट भी रहा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का मेरा स्पेशलाइजेशन भी है, टेस्टिंग एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। मैं अपने यहाँ ये पेपर देखती हूँ और मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी है रिसर्च मेथड्स में। तो हम लोग आज रिसर्च मेथड में मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के जो भी टाइप्स हैं उसको पढ़ते हैं, उसको आपस में डिस्कशन करते हैं। और ये शायद आपके सिलेबस में 3rd यूनिट है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें इंटरव्यू मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, सोशियोमेट्री मेथड एक्सेट्रा सब कुछ है। तो हम लोग शुरू करें, इंटरव्यू मेथड से ही शुरू करें। ओके रिसर्च में डेटा कलेक्शन, रिसर्च में जब हम पहले हाइपोथेसिस बना लेते हैं और उसके बाद उसके टेस्टिंग के लिए लॉजिकली डेटा कलेक्शन करते हैं, तो डेटा कलेक्शन के लिए अनेक मेथड्स का उपयोग करते हैं, अनेक विधियों का उपयोग करते हैं। और इस डेटा कलेक्शन के लिए विधियों का उपयोग करते हैं, इनमें से मुख्य रूप से हैं इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनर, सोशियोमेट्री मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक्स, कंटेंट एनालिसिस एक्सेट्रा। तो डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स में से सबसे पहला मेथड आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे आपस में एक दूसरे से। इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू मेथड को अगर हम शुरू करें आलपोर्ट के एक कोटेशन से कि इंटरव्यू मेथड क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू मेथड की क्या इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन की सबसे सरल और प्राथमिक विधि है
किसी विषय पर हम किसी से कुछ पूछ लें, उसके विचार जान लें, उसके सेल्फ रिपोर्टिंग के आधार पर उसके उस समस्या के बारे में या उसके विषय में अनुमान लगा सकते हैं। आलपोर्ट ने एक बहुत पहले एक कोटेशन दिया था कि इफ वी वांट टू नो हाउ पीपल फील, हाउ व्हाट दे experiencing and what they remember, what their motives and emotions, and what the reasons for acting are they do, why not ask them। यदि हम किसी व्यक्ति से यदि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है, उसकी स्मृतियां क्या हैं, उसके संवेग और मोटिवेशन क्या हैं और उनके व्यवहार के क्या कारण हैं, तो सीधे सीधे उन्हीं से क्यों ना पूछ लिया जाए। ये आलपोर्ट की जो ये कोटेशन है, ये इंटरव्यू मेथड के पूरे इम्पोर्टेंस को पर हाईलाइट करता है कि यदि किसी विषय में किसी से कुछ जानना है, इंटरव्यू मेथड को अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो इट इज अ कन्वर्सेशन, यह बातचीत की एक प्रविधि है विथ अ पर्पस, जिसका कि एक उद्देश्य होता है। अर्थात किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम तो यह इंटरव्यू कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने इंटरव्यू मेथड को डिफाइन भी किया है। कर्लिंगर ने बताया है कि इंटरव्यू मेथड का लक्ष्य घटनाओं के संबंधों को जानना और किसी हाइपोथेसिस को सिद्ध में दो वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार के संबंध है और कोई उपकल्पना सत्यापित करने का एम होता है। एक दूसरी परिभाषा या दूसरा व्यू कोहेन का है। उन्होंने कहा कि साक्षात एक विशेष प्रकार का होता है जिसको प्रारंभ करने का एक विशेष उद्देश्य होता है और जो केवल एक विषय वस्तु या क्षेत्र से संबंधित होता है। मतलब साक्षात्कार में सबसे पहले वर्बल इंटरैक्शन होता है, मौखिक अंतरक्रिया होती है और यह मौखिक अंतरक्रिया एक विशेष लक्ष्य के लिए होती है और यह मौखिक अंतरक्रिया वर्बल इंटरैक्शन इस एक विशेष लक्ष्य या विशेष कंटेंट या विषय वस्तु से संबंधित होती है। तो ये दो व्यू के एक सिंपल से दोनों व्यू के रेफरेंस में या दोनों व्यू को ध्यान में रखते हुए हम इंटरव्यू मेथड को बता सकते हैं कि यह एक डेटा कलेक्शन की यह एक प्राथमिक और सरल प्रविधि है जिसमें किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दो व्यक्ति, इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला, आमने सामने के संबंध स्थापित करके किसी विषय के संबंध में कुछ प्रश्नों को पूछकर, कुछ प्रश्नों को के आधार पर बातचीत करके और प्राप्त उत्तरों के आधार पर तरह तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू मेथड को हम विशेषता के आधार पर देखें तो सबसे पहली विशेषता क्या है? इंटरव्यू मेथड में दो व्यक्तियों के आमने सामने के निकटतम संपर्क और संबंध स्थापित होते हैं। इसको दूसरी तरफ में फेस टू फेस रिलेशन होते हैं। दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर फेस टू फेस रिलेशनशिप स्थापित करते हैं और यह रिलेशनशिप या इस प्रकार का संबंध किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। और एक और मुख्य विशेषता यह है कि यह डेटा कलेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक विधि है। व्यक्ति के उन आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों, अभिप्रेरकों के बारे में हम आमने सामने बैठकर जानकारी यदि प्राप्त करें तो वो सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाएगा। तो डेटा कलेक्शन के लिए साक्षात्कार विधि आज भी प्रासंगिक है और आज भी इसका उपयोग मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। यदि हम इंटरव्यू मेथड के टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो इसके टाइप्स, ये चैप्टर ऐसा जिसको कि आप बार बार पढ़ते हैं। आई थिंक कि आप बीए पार्ट 1 में भी पढ़ते हैं, पार्ट 2 में भी पढ़ते हैं, अर्थात ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ते हैं और जब हम पीजी में आते हैं तो थोड़ा ब्रॉड लेवल पर पढ़ने की कोशिश करते हैं रिसर्च मेथड पेपर के रेफरेंस में।
तो टाइप के लिए इसे हम कहें कि ये अनेक आधारों पर इसको डिफरेंट टाइप में वर्गीकृत करके हम पढ़ सकते हैं। यदि हम औपचारिकता के आधार पर इंटरव्यू को वर्गीकृत करें तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला नियंत्रित साक्षात्कार कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और दूसरा अनियंत्रित साक्षात्कार अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अध्ययन पद्धति के आधार पर यदि हम इसे वर्गीकृत करें तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अनिर्देशित नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, केंद्रित फोकस इंटरव्यू, पुनरावृत्ति साक्षात्कार रिपीटेटिव इंटरव्यू। यदि हम लक्ष्य के आधार पर साक्षात्कार विधि को वर्गीकृत करें तो इसके 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कारक परीक्षण साक्षात्कार, दूसरा उपचारात्मक साक्षात्कार ट्रीटमेंट इंटरव्यू और तीसरा रिसर्च इंटरव्यू अनुसंधान परक साक्षात्कार। सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर इसे यदि हम डिवाइड करें तो इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। थोड़ा सा इसको डील करें, थोड़ा सा डिटेल करें हम इन डिफरेंट टाइप्स को। पहला है नियंत्रित साक्षात्कार कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसे हम संरचित स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कह सकते हैं। इस प्रकार के इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता एक पहले से बनी हुई पूर्व निर्मित अनुसूची में दिए गए प्रश्नों को ही पूछता है और उत्तरों को नोट कर लेता है, उत्तरों को अंकित कर लेता है। इस प्रकार इस इंटरव्यू में सुनिश्चित प्रश्न सुनिश्चित वातावरण में पूछे जाते हैं और उत्तर को अनुक्रियाओं को लिख लिया जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड इसे हम इसलिए नियंत्रित करते हैं कि हम इसमें उत्तरदाता के किसी मुक्त उत्तर की अपेक्षा नहीं करते। प्रश्न पूछा जाता है किसी समस्या से संबंधित, किसी विषय वस्तु से संबंधित, और उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा प्रकार है अनियंत्रित साक्षात्कार अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसे हम स्वतंत्र साक्षात्कार भी कह सकते हैं। इसमें किसी विशेष इंटरव्यू का उपयोग नहीं, किसी विशेष प्रश्नों की सूची या अनुसूची का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी विशेष समस्या या किसी विशेष विषय वस्तु से के संबंध में उत्तरदाता से उसके राय जानता है, उसके मुक्त अनुक्रियाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब डिस्क्रिप्टिव उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और उत्तरदाता जो है वर्णन के रूप में अपने विचारों को प्रकट करता है। अध्ययन पद्धति के आधार की बात यदि हम करें तो साक्षात्कार के 3 प्रकार हैं, नॉन डायरेक्टिव, फोकस्ड और रिपीटेटिव। और निर्देशित कार भी कह सकते हैं, या उसी से मिलता जुलता है। इसमें किसी विषय से संबंधित या किसी समस्या पर उत्तरदाता की अनुक्रियाएं जानी जाती हैं। केंद्रित साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार का सबसे पहले उपयोग रॉबर्ट और मार्टन ने किया था। उन्होंने कम्युनिकेशन के विभिन्न साधनों जैसे रेडियो, फिल्म, टेलीविजन या और सामाजिक पत्र पत्रिकाएं, इन साधनों का जन समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए उन्होंने इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग किया। इस साक्षात्कार में किसी निश्चित विषय, विशेष परिस्थिति या किसी विशेष खोज का प्रभाव जानने के लिए अनुक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं, साक्षात्कार लिया जाता है। पुनरावृत्ति साक्षात्कार, विभिन्न परिस्थितियों और उद्दीपकों की उपस्थिति में उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी सिद्धांत के प्रति अनेक व्यक्तियों की राय जानने के लिए पुनरावृत्ति साक्षात्कार लिया जा सकता है। लक्ष्य के आधार पर साक्षात्कार के 2 मुख्य प्रकार हैं, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू और ट्रीटमेंट इंटरव्यू।
कारक परीक्षण साक्षात्कार जिसको हम कह सकते हैं, इसका उद्देश्य है किसी गंभीर सामाजिक घटना, गंभीर सामाजिक समस्या के कारण की खोज करने के लिए साक्षात्कार लेना। उदाहरण के लिए गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि समस्याओं के संबंध में लोगों की राय जानने के लिए, जन समुदाय की राय जानने के लिए साक्षात्कार लेना। नेक्स्ट है उपचारात्मक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार का उपयोग किसी समस्या को दूर करने के लिए, मानसिक समस्या को या असामान्यता को दूर करने के लिए उपचार से संबंधित सुझावों की खोज करना होता है। अर्थात उपचार के रेफरेंस में हम क्लाइंट या रोगी से संबंध स्थापित साक्षात्कार लेकर उसके विषय में, उसकी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अनुसंधान परक साक्षात्कार नेक्स्ट है। विभिन्न विषयों से संबंधित घटनाओं की जानकारी के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार लिए जाते हैं। और लास्ट में साक्षात्कार के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार, एक समय में एक व्यक्ति के से साक्षात्कार लेना। सामूहिक संबंधित किसी विषय वस्तु से संबंधित राय जानने के लिए अनेक लोगों से साक्षात्कार लेना। तो ये साक्षात्कार के प्रकार हो गए। साक्षात्कार क्या हुआ ये बताया मैंने। अब साक्षात्कार विधि की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? साक्षात्कार विधि की उपयोगिता क्या हो सकता है? साक्षात्कार विधि के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन संभव हो सकता है। ऐसी सूचनाएं जो अमूर्त हों, अदृश्य हों, उनका साक्षात्कार भी हम साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के संवेग के बारे में, किसी व्यक्ति के मोटिवेशन के बारे में, उसके विश्वास के बारे में, धारणा इत्यादि के बारे में भी हम साक्षात्कार विधि का उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि द्वारा व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी संभव है, क्योंकि प्रयोज्य न आमने सामने की स्थिति में न केवल उसके वर्बल बिहेवियर की जानकारी प्राप्त करता है, बल्कि उसके गेस्चर और पोस्चर की भी जानकारी के द्वारा अनुमान लगा सकता है। प्रयोज्य के आंतरिक व्यवहार, उसके अभिवृत्ति, उसके मूल्य, उसकी इच्छाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। साक्षात्कार विधि की एक मुख्य विशेषता या मुख्य गुण कह सकते हैं, मेरिट है कि यह एक प्रोविंग मेथड है। प्रोब करना मतलब किसी व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को जानना, भेदनशीलता प्रोब करने की विधि है। हम किसी से कुछ आमने सामने की परिस्थिति में यदि हम कुछ पूछ रहे हैं, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम रिपोर्ट का संबंध स्थापित करके, प्राथमिक संबंध स्थापित करके धीरे धीरे उसके आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं को भी जान सकते हैं। क्षमता इतनी होनी चाहिए कि साक्षात्कार विधि में दोनों के बीच में अनौपचारिक संबंध भी स्थापित हो जाए, न कि केवल कुछ प्रश्नों को पूछना, प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम प्रोविंग मेथड प्रोब करके उत्तरदाता की अनुक्रियाओं को, उत्तरदाता के आंतरिक भावनाओं को जान सकें, और इस प्रकार इस विधि द्वारा प्राप्त होने वाले परिणाम विश्वसनीय होते हैं। यदि साक्षात्कार विधि बहुत प्लान्ड वे में किया गया, साक्षात्कार का उपयोग किया गया, आमने सामने बैठ के फेस टू फेस रिलेशन स्थापित करके, प्रोविंग करके यदि लिया गया साक्षात्कार, तो बहुत विश्वसनीय परिणाम देता है। प्रेरणात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं साक्षात्कार को। ये पारस्परिक प्रेरणात्मक अध्ययन की तरफ इंगित करता है, मतलब एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का भी कार्य करके उनकी इच्छाओं को जान सकते हैं। लेकिन यह विधि वैज्ञानिक है, प्राथमिक है, आंतरिक भावनाओं को भी हम जान सकते हैं, विश्वसनीय है। इसके बावजूद भी